All right, Assalamu alaikum. Uh, I'm going to start today with the enzymes. और enzymes के अंदर भी जो सबसे important चीज़ है जिसको हम लोगों ने join start करना है वो है हमारा Michaelis Menten. Let's go on the Michaelis area. काफी पढ़ लिया कल हमने. Yes. From this slide onward, we will go on um, Michaelis-Menten equation. अच्छा बेटा, पहली बात तो ये है कि अभी तक कल तक हम लोगों ने एंजाइम की बायोकेमिस्ट्री पढ़ी कि एंजाइम बाय नेचर क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं. फिर उसके बाद हमने उनको पढ़ा कि उनकी टाइप्स क्या हैं, उनको टाइपिफाई किया, उनको क्लासिफाई किया. फिर उसके बाद हम लोगों ने उनका रोल इन दी क्या कह सकते हैं, रोल इन दी इक्वेशन और केमिस्ट्री, कैसे वो कैटलिसिस करते हैं, कैसे दे बेनिफिट द होल रिएक्शन. दैट इज व्हाट वी स्टडी टिल यस्टरडे. आज इस मिकालिस मेंटन इक्वेशन को पढ़ाने की पहली बात तो ये है, यू नीड टू नो द रीजन. इफ यू apprehend और if you develop the concept of Michaelis Menten equation reason, then there is no need, there will be nothing difficult left behind, right? तो सबसे पहले इसको जरा थोड़ा सा कोशिश करें दोबारा से समझने की. इसको समझने की जब आप कोशिश करेंगे तो दिस इज द इक्वेशन दैट एक्चुअली टेल्स यू कि एक यूनिट टाइम के अंदर रहते हुए एक एंजाइम की क्या पावर है. टू नो दैट which one of the enzyme is more powerful and which one of the enzyme can do the reaction faster than the other one, you get this equation to work. जैसे कि कल हम आपको पढ़ा रहे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम, जिस तरह ट्रांसफेरेजेस हो गए, काइनेजेस हो गए. ऑल ऑफ देम they had one thing in common, that there were different groups containing the same sort of the enzyme. अब out of those different groups, जब आप जब assess करते हैं अपने आप को तो आपको Michaelis Menten equation help करती है. So coming back to the reaction, Michaelis Menten propose a simple model accounts for the most of the features of the enzyme catalyzed reaction. In this model, the enzyme reversibly combines with its substrate to form enzyme substrate complex and subsequently breaks down to the product, regenerating the free energy. The model involving one substrate molecule is represented below. अच्छा जी, अब हम नीचे एक मॉडल देख रहे हैं जिसमें उसने दिखाया हुआ है एंजाइम सबस्ट्रेट मॉडल. ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट मॉडल उसने पहले बनाया कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसके ऊपर उसने K1 लगाया है. ठीक है, दैट K इज अ कांस्टेंट ऑफ एंजाइम और Michaelis कांस्टेंट. ठीक हो गया. अब this K constant is being consumed when enzyme and substrate are yet to bind with each other. The next thing which will happen is they will form another complex called as enzyme substrate complex. Now this is functionally a compound. यहाँ पे एंजाइम अपने आप को बाइंड कर चुका हुआ है, इन्वॉल्व हो चुका हुआ है, अपना बायोकेमिकल शेप चेंज कर चुका हुआ है. The next thing that we will have is product. But make sure ये भी इससे पहले भी एक और स्टेज भी है, that is enzyme product plus product. All right.
So now coming back to the um, uh, equation, where S is a substrate, E is the enzyme, and ES is the enzyme substrate complex, and P is the product. K1 and K2 are the rates of the reaction. Not only that, they are the constant for the enzyme. अब enzyme का constant क्या होगा? enzyme की functionality क्या है? enzyme को हम chemistry wise समझेंगे क्या? उसकी identity क्या है? क्योंकि हम जब केमिस्ट्री या एक सोल्यूशन के अंदर सारी चीजें डाल देंगे तो हमें एंजाइम का पता तो नहीं चलता कि अंदर एंजाइम कौन सा है। और वो जिस तरह मैं कल गाड़ी की मिसाल दे रहा था, एंजाइम इज नॉट एन एक्चुअली अ कार दैट यू कैन फिजिकली सी। सो व्हाट विल हैपन इज कि one thing is for sure that this enzyme, whenever you look at the reaction, is only a rate. Whenever you put an enzyme in the reaction, the rate increases. So अब देखो उसने इस इक्वेशन को ड्रॉ कैसे किया। Anybody of you still is confused about yesterday's lecture? Any question left so far? तो वो मुझे मेरे से शेयर करें, और you can write on a chat कि are we on, सारे जाग चुके हुए हो, यहाँ से इक्वेशन ड्राइव करना शुरू कर दें। ठीक है, ओके ठीक है, चलो जी। Michaelis-Menten equation describes reaction velocity with substrate concentration as below. इसमें अब आप देखो बेटा, यहाँ पे आपका V नॉट इज इक्वल टू V मैक्स। जब हम ग्राफ आगे ड्रॉ करेंगे किसी भी सूरत में, जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक स्टेज होगी ग्राफ की जहां से आपका जो लाइन है वो पैराबोला हो जाएगी। पैराबोला से बेहतर है मैं कहूँ कि स्ट्रेट लाइन होगी। उस स्पॉट को हम V मैक्स के नाम से भी जानेंगे और उसको V नॉट भी कहेंगे आगे जाके। इस वक्त उसने क्या है, इक्वेशन को देखो, उसने क्या है, V नॉट इज इक्वल टू V मैक्स। ठीक है ना, पहला पोस्टुलेट। उसने कहा V max is equal to is equal to substrate concentration, ठीक है, substrate concentration into over Km को निकालें, ठीक है, another substrate concentration, ठीक है। अब दो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशंस एक दूसरे पे डिवाइड हुई हैं टू जनरेट अ V नॉट। अब देखें इनिशियल रिएक्शन वेलोसिटी, अगर ये ग्राफ शुरू किया था तो यहां से जो रिएक्शन की वेलोसिटी थी इसको इनिशियल रिएक्शन वेलोसिटी उसने कहा, ठीक है। मैक्सिमम वेलोसिटी, दिस इज अगेन मैक्सिमम वेलोसिटी, जहां से आपकी लाइन स्ट्रेट हो गई, ठीक है। मैकेलिस कांस्टेंट, ठीक है, Km इज अ मैकेलिस कांस्टेंट। पिछली स्लाइड में हमने देखा कि एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट कन्वर्जन टू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हैज या रिजल्टेंट ऑफ K1। फिर एंजाइम substrate complex resulting into or changes into phosphate gives product that consumes K2, ठीक है। अब इन दोनों का अगर आप रेशो निकाल लेंगे, जब आपने एंजाइम सबस्ट्रेट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट निकालना है टू नो कि क्या रेशो में ये दोनों बने हैं, तो आपने K1 को डिवाइड बाय K2 किया,
ठीक है, अब इधर एक, वैसे तो ये हम एमबीबीएस वालों को करवा के देते हैं। लास्ट टाइम मैंने बीडीएस वालों को भी ये नहीं करवा के दिया था, क्या नाम है, ये रिएक्शन मैंने बीडीएस वालों को भी नहीं करवा के दिया था। बट कंसिडरिंग द फैक्ट दैट कि इसके अंदर छोटी सी चीज जो आपको डिवाइड करने की जरूरत है या इसका रिवर्स लेने की जरूरत है, वो है आई एम गोइंग इनटू द एक चीज को याद रखिएगा, वी मैक्स यानी जहां पे अचीव होता है, ऑब्वियसली इट गोज अप when the concentration of substrate goes up, ठीक है, बोथ आर मतलब जिसे कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बट जहां पे आपका v नॉट अचीव हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी गोज ऑपोजिटली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट। उसकी वजह कि जैसे ही सबस्ट्रेट आप बढ़ाएंगे आप v मैक्स की तरफ जाएंगे, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी के आप ऑपोजिट चले गए ना, आप इसको इंक्रीज करेंगे, ये नीचे रह गया, ये डिक्रीज हो गया, ये अपनी जगह पे रह गया, डिक्रीज नहीं हुआ बल्कि ये इसके ऑपोजिट रह गया। इट इज इन दी ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। इसी कोशिश करना जरा अप्रीहेंड करना रिएक्शन के अंदर या ग्राफ के अंदर। मैं आपको वो ड्रॉ करवा के टाइम हुआ तो मैं दे भी दूंगा, ठीक है। मगर सो दे आर दी इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। अब आपके पास जो इस वक्त इक्वेशन आपकी बनी वो ये बनी कि जी आपकी जो V नॉट है वो V मैक्स के इक्वल इस सूरत में है कि जो V मैक्स इनटू द कंसंट्रेशन है, जो ये वाला सबस्ट्रेट के साथ जो इसका रिलेशन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका सबस्ट्रेट की क्वांटिटी थी 5 और V मैक्स की क्वांटिटी थी 5, तो 5 into 5 5 into 5 is equal to डिवाइडेड बाय, अब इधर आपकी एनर्जी लगी है या रेट ऑफ रिएक्शन लगा 2, इधर भी आपका रेट ऑफ रिएक्शन लगा 2, तो ये 4 डिवाइड इनटू द रेट ऑफ कंसंट्रेशन 4 प्लस 5, ठीक है। अब 5 into 5 25 डिवाइडेड बाय 9, इट इज जो इसका रिजल्ट निकलेगा, जो भी निकलेगा वो आप लोगों को कैलकुलेटर खोल के देख लेना, दैट विल बी योर V naught or the reaction or the rate of the reaction carried by the reaction वो enzyme, ठीक है जी। अब इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, इसको रिएक्शन के अंदर कैसे डालेंगे, ये मैंने चार्ट आपको पढ़ा दिया था। लेट्स गो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस एंजाइम। ताज़ीम मैं एक और दफा समझाता हूँ। तो देखो, हमने कहा V नॉट इज इक्वल टू V मैक्स, ठीक है, इनटू ये V मैक्स को इस तरह कर देता हूँ, V मैक्स इनटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय, और सॉरी इसको दोबारा से सुना दो। V naught is equal to V max multiplied by substrate concentration divided by आपका जो Km प्लस सबस्ट्रेट। यही हो गया। आपको बताता हूँ चार कहाँ से आए। जब मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा था, मैंने कहा कि पिछली स्लाइड को दोबारा लेके जाऊंगा। मैंने कहा था K1 आपका 2 लग गया, फॉर एग्जांपल K2 आपका भी 2 लग गया। ये देखा था मेरा ताज़ीम,
पिछली स्लाइड में, पिछली स्लाइड पे लेके जाऊंगा, ठीक है ना आपको। K1 क्या था, जब आपका एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट इज इक्वल टू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना रहा था, ये आपका था 2। फिर आपका K2 क्या था, जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना रहा था प्रोडक्ट। इन दोनों का जब आप सम करोगे K1 प्लस K2, दैट विल गिव यू Km, ठीक है। ये दूसरा पार्ट था रिएक्शन का। तो 2 + 2 इज इक्वल टू 4। वो यहाँ पे कहता है Km प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। मैंने कहा कंसिडर दिस 5, कंसिडर दिस 5, ठीक है। कंसिडर दिस, इसे भी एक इसे कंसिडर कर लो एज लाइक 4, ठीक है, इसे 4 कर लो। अब V0 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 gives 20 प्लस 9, राइट। ऐसा ही हो गया। अब इसे 20, इसे 5 कर देते हैं, इसे भी 5 कर देते हैं, ये 25 हो गया। अब इसका इक्वेशन का जवाब निकाल लो, वो आपका V0 हो गया। समझ आ गई हिरा? यू गॉट इट? हिरा किधर चली गई? अब मैंने हिरा से भी तो पूछा है, ठीक है। हिरा ये देखो, इस इक्वेशन में मैंने यहाँ पे K1 और K2 निकाला था, इसे पिछली वाली। यस सर, गॉट इट। चलो जी आगे चलते हैं। अब इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ Michaelis constant, ठीक हो गया। Km, the Michaelis constant is characterized an enzyme, its particular substrate, and reflects the affinity of enzyme for the substrate. तो बेटा in short आगे जिंदगी में अब Km का मतलब ये है affinity। अब जहां पे भी Km शो होगा वहां पे इसका मतलब है affinity। affinity का मतलब क्या होता है, कितना ज्यादा ये एंजाइम प्यार करता है अपने सबस्ट्रेट के साथ, ठीक है। नॉट द रेट ऑफ रिएक्शन, मेक श्योर इसको कंफ्यूज नहीं करना। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स Km is only denominates this complex formation, ठीक है। it does not denominates इसकी conversion into P। इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। Km numerically is equal to the substrate concentration at which the reaction velocity is half of the Km, ठीक है। Obviously इस चीज को अभी इस स्टेटमेंट को समझने के लिए मैं आप लोगों को एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। देखिए ये ड्रॉ किया हमने चार्ट, ये हमारा Vmax है। अब यहां से हमारा जो ग्राफ है वो टिल्ट हो जाता है, और इधर तक पहुंचने तक ये अपनी, अब आपने बायो अवेलेबिलिटी की जब बात की है, ये फार्माकोलॉजी की थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ जाता है कि हाफ लाइफ का अगर किसी को पुराना कॉन्सेप्ट है तो हाफ लाइफ अलग चक्कर है। हम किसी भी चीज की एफिनिटी को या बाइंडिंग कैपेसिटी को कि उसके हाफ लाइफ के साथ कंपेयर करते हैं, राइट। अब ये यहाँ से, या ये फॉर एग्जांपल ये 6 है, ये 0 है, तो एट द लेवल ऑफ 3 we consider that enzyme has the maximum affinity towards its substrate, ठीक है। तो हम कहते हैं Km is यानी affinity is numerically equal to substrate concentration at which the reactant energy is half the Vmax of Km value and does not vary the concentration of enzyme। इस प्यार में, इस एफिनिटी में कोई फर्क नहीं आता अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम को बढ़ा दें, ठीक है। ये कांस्टेंट है, एक प्यार बढ़ा दें। अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा एक बंदी से प्यार कर रहा है, या एक कोई भी इस तरह का है, अगर वो बंदा मोटा हो जाता है बहुत ज्यादा, तो उसके प्यार में कोई मोटापा नहीं आ जाता,
the constant, the feeling, the affinity, the receptor side remains the same in the amount, does not vary with the concentration. ये concept clear हुआ? आगे चलते हैं. Small km, ठीक है. A numerically low km reflects high affinity. Make sure. Why, sir? हमने तो कहा कि km is the value of the affinity. तो low km, high affinity. बेटा यहाँ पे पिछली स्लाइड में आपने देखा है that we say that the concentration velocity is equal to the half, and it is always the inverse. ये देखो, इस कंसंट्रेशन में देखो V max के नीचे है, ये रिएक्शन के नीचे है, यानी इट इज, मैंने जब आप लोगों को ये बना के दिया था, इक्वेशन ड्रॉ करके दी थी, तो इक्वेशन क्या ड्रॉ हुई थी? हमारी इक्वेशन ये ड्रॉ हुई थी V max V नॉट इज इक्वल टू जो भी ऊपर x y z था उसके नीचे km था, तो इनवर्सली प्रोपोर्शन था, V इज इक्वल टू 1/km. तो अगर ये एक मैक्स की बात है, अगर ये बढ़ जाएगा तो ये एक्चुअली अपना डिवीजन में जाके ये कम हो जाएगा, नेट रिजल्ट विल बी कम, और ये कम रहेगा तो द नेट रिजल्ट विल बी ग्रेटर. सो km is numerically, as a small km is high affinity for the enzyme for the substrate, because low concentration of the substrate is needed to saturate the half of the enzyme to reach Vmax half. तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे मैंने बहुत से बच्चों को ये समझाया और सब बच्चों ने इसका कहा कि सर ठीक है, अगर एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ाने से हमारी एफिनिटी नहीं बढ़ती और एफिनिटी कांस्टेंट रहती है, तो क्या सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से भी अगर बढ़ाने से या कम होने से ये एफिनिटी बढ़ती या नहीं बढ़ती? बेटा पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप लोगों ने ज़हन में क्लियर करना है कि फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो इज दैट दिस km is derived under the constant conditions of the substrate and environmental. ठीक है, इसमें इनहिबिटर की भी इक्वेशन में बात नहीं की भी, इसमें हम लोगों ने एनवायरमेंटल फैक्टर जो कि मॉड्यूलेटर हैं उनकी भी बात नहीं की. ठीक है, तो अगर आप एंजाइम के साथ कंसंट्रेशन के साथ आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एक लेवल तक बढ़ाएंगे, जिस तरह मैंने कल मिसाल दी थी नंबर ऑफ सीड्स की, तो डेफिनेटली आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा. सो वी कंसिडर दिस थिंग that this is only and only considered for the enzyme, just for the enzyme and its concentration. Large km value, low affinity. ठीक है, अब यहाँ पे आके देखते हैं 2 km वैल्यूज को. अब ये जो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट हो रहा है km वैल्यूज को, ये V max है आपका. ठीक है, अब देखो V max तक नॉर्मली ये एक ओरिजिनल ग्राफ उठा के स्टडी हो रहा है. V max नॉर्मली पहुंचते भी नहीं है आपके एंजाइम्स. ठीक है, तो V max हाफ जो कि आपका km वैल्यू के ऊपर जहाँ पे असेस होता है वहां पे होता है. आप देखो अगर एक एंजाइम की km वैल्यू लो है, ठीक है, और एक एंजाइम की km वैल्यू हाई है या ग्रेटर है, तो आप देखो वो रेट ये प्रोडक्ट बन रहा है. ठीक है, वो अपने सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करके ये V max आपको प्रोडक्ट होगा, वो कितने लॉन्गर टाइम पीरियड के अंदर एज कंपेयर टू द येलो लाइन ब्लू लाइन वो क्रिएट कर रहा है. दिस मच इज द डिफरेंस. हालांकि नीचे आपका डिफरेंस, अब डिफरेंस को स्टडी करते हैं जरा. देखो इस डिफरेंस को आप स्टडी करें कि ये 2 का डिफरेंस है, तो ऊपर आके अगर आपका एट द V max लेवल अगर आप देखें, इसमें हालांकि आपके लिए ड्रॉ करना मुश्किल है, मगर ये आपका तकरीबन 4 का डिफरेंस है. तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होने के बाद इन डबल ऑफ द टाइम का फर्क पड़ रहा है कि अगर km वैल्यू बाय 1 इंक्रीज होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन
बाय 2 स्लो होता है क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, और इसका इम्पैक्ट डबल ऑफ द टाइम पड़ जाता है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। Relationship of velocity to enzyme concentration. The rate of reaction is directly proportional to the enzyme concentration in all the substrate concentrations. ठीक हो गया, यहाँ तक तो बात clear होगी. For example, if the enzyme concentration is half, the reactor of reaction V naught as well as the V max are reduced to one half of the their. Sorry. Oh, sorry. अच्छा जी. The next thing that we are going to study is about order of the reaction. Order of the reaction is when substrate is much less than Km, ठीक है, यानी Km is the affinity, affinity is V max into half, ठीक है, और अगर substrate उससे आधा है, the velocity of the reaction approximately proportional to the substrate concentration. अब ये वो वाली बात होगी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन वाली जो मैंने कल एक्सप्लेन की थी, आकार with 10 seats. अगर 10 बंदों से कम तक सबस्ट्रेट है, ठीक है ना, सबस्ट्रेट इज योर पैसेंजर. इफ योर पैसेंजर्स आर लेस देन 10, तो विद इन 1 से लेके 9 तक the rate of reaction is dependent on the passengers. If the passengers are available, then the rate of the reaction is goes high, यानी 9 पे हाई होगा और 1 पे कम होगा, ठीक है. The rate of reaction is then called first order. अगर आपको क्वेश्चन आता है कि बेटा what is first order rate of reaction, तो आप ये कहेंगे the rate of reaction dependent on the concentration of the substrate which is less than the maximum concentration of the reagent. That's Km, ठीक है. When substrate concentration is greater than Km, आप affinity से ऊपर चले गए, यानी 10 से ऊपर चले गए, आपके सबस्ट्रेट सीटों से ज्यादा आपकी सवारियां आ गई. द वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट इक्वल टू द वी मैक्स. अब ये वी मैक्स के साथ, आपके वी मैक्स के साथ जो आपका केएम की इक्वेशन ट्राई की थी वो कांस्टेंट हो जाएगा. अब आप 100 बंदे भी ले आए यहाँ पे, वो बैठेंगे 10 ही गाड़ी के अंदर. The rate of reaction is then independent of the substrate concentration and it is called as zero order. So दो ऑर्डर आपके रिएक्शन, यहाँ पे आपके दो सवाल निकला है बेटा, जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर. फर्स्ट ऑर्डर आपका रेट ऑफ रिएक्शन वो है जो कि डिपेंडेंट है ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, एंड द नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन. जी बेटा जी बोले, यहाँ तक समझ आ गया? यू आर डन विद मैकालेस कांस्टेंट, यू आर डन विद द इक्वेशन एंड अब उसकी निमोनिक्स पे जा रहे हैं. बताएं ऑल ऑफ यू जो कि जागे हुए हैं, ताजीम, हेरा और कौन जागा हुआ है, और कौन जागा हुआ है, सिमन, मरियम, क्लियर है? ठीक है, नमाज मेरा ठीक होगा, नूर फातिमा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. आगे चलो, यहाँ तक तो सारा क्लियर हो गया, आगे चलते हैं. अब आप देखो इसी चीज को यहाँ पे उसने एक्सप्लेन किया कि जब तक इस ग्राफ के अंदर Km वैल्यू से नीचे है कंसंट्रेशन, तो जिस तरह सबस्ट्रेट बढ़ता जा रहा है, रेट बढ़ता जा रहा है, स्ट्रेट ऊपर जा रहा है, ठीक है. जब आपका Km सैचुरेट हो गया, उसके बाद आप सबस्ट्रेट जितना भी बढ़ा दें तो थोड़ा बहुत रेट बढ़ेगा, ज्यादा इसके अलावा नहीं रेट बढ़ेगा. ठीक हो गया? तो दिस इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ दिस. Thank you so much all of you for the reply. अब Lineweaver-Burke plot, double reciprocal plot, ठीक है. अब जनाब साहब मैकालेस साहब ने फेम उठा लिया, उन्होंने केमिस्ट्री में इक्वेशन बना दी, पूरी दुनिया में डंडे बैठ गए, उनको नोबेल प्राइज मिल गया. तो मेरे और आप जिस तरह के बंदों ने भी कुछ सोचा कि यार इस बहती गंगा में हम भी हाथ बहा लें. तो इन्होंने क्या किया, ये मैथमेटिशियंस थे, ये केमिस्ट थे, इन्होंने आके एक इक्वेशन ड्रॉ. अब जनाब इस इक्वेशन के अंदर इन्होंने मतलब ये उसकी एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन लाई इसी इक्वेशन की. अब इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि जी हम
डबल रेसिप्रोकल ग्राफ डालते हैं। उस वक्त तक, जब तक कि ये ग्राफ लेवल इंट्रोड्यूस हुआ, उस वक्त तक हमारे पास ये ग्राफ्स या ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर ये ग्राफ्स नहीं होते थे। अगर जब ये ग्राफ्स बने तो इसका बड़ा फायदा हुआ। अब उसका फायदा किस तरह उठाया इन्होंने, सॉरी, डबल रेसिप्रोकल के अंदर इन्होंने क्या शो किया, इन्होंने कहा कि जी अभी तक तो हम ग्राफ ये शो करते हैं, इन्होंने कहा दिस साइड इज पॉजिटिव, दिस साइड again is positive, this side is positive, this side is negative, this side is negative, this side is negative, this side is positive और this side is negative। अब ये जो मैंने एक डायग्राम बनाई है, आपको पता चल गया कि इस डायग्राम के अंदर इन ग्राफ्स को, इस ग्राफ को अगर स्टडी करें तो कौन कौन सी साइडें इसकी पॉजिटिव निकलती है, ठीक है। अब नेगेटिव जाने का मतलब ये होता है, जहां पे भी स्टार्ट्स के अंदर आप नेगेटिव जाते हैं, इसका मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये एक छोटी सी मैथ्स की बात है, नॉर्मली एमबीबीएस के स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी बाद में सीख किया, तो इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। अब आप देखो, हम कहते हैं कि अगर इस ग्राफ को हम डिनोमिनेट करते हैं एज वी मैक्स, हम कहते हैं कि वी मैक्स इज, इस स्लोप को देखो कि इसने कहा है द स्लोप रिप्रेजेंट्स के एम डिवाइडेड बाय वी मैक्स, ठीक है। दिस स्लोप इज रिप्रेजेंटिंग के एम डिवाइडेड बाय वी मैक्स। अब वाई के एम डिवाइडेड बाय वी मैक्स, बिकॉज ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। देखें, this called as a reciprocal plot because the plot between the reciprocal's velocity and the substrate of reaction. So the maximum velocity will be achieved when the minimum km is available. km क्या था, affinity, ये जितना कम होगा उतना रेट ज्यादा होगा, तो ये ऑब्वियसली आपस में ऑपोजिटली यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होगा ना। km की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, तो ये इनवर्स, ये बेसिकली वैल्यू बाय इटसेल्फ एक नेगेटिव वैल्यू है, एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल वैल्यू। तो अब आप वो देखें, अगर इस ग्राफ पे वी मैक्स यहाँ पे अचीव होगा तो उसका जो के एम होगा वो उसके नेगेटिव में अचीव होगा, अगर 1/1 होगा, वो यहाँ पे नेगेटिव साइड पे आ गया, ठीक है। अगर कंसिडर करें कि मैं के एम वैल्यू इतनी बढ़ा देता हूं कि मेरी के एम वैल्यू पॉजिटिव आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब मेरा ग्राफ किस सूरत में बनेगा जो कि इसको वी मैक्स कट करे, वो कुछ तकरीबन, अगर मैंने इस पॉइंट को टच करना है तो वो मेरा कुछ इस तरह का बने, टोटली टोटली डाउन द ग्रेडियंट, ठीक है। अब मैं इसको अपना पॉइंट यहाँ पे लेकर आऊंगा तो मेरा ये इस तरह बनेगा, मैं अपना पॉइंट यहाँ पे लेकर आऊंगा इस तरह बनेगा, जीरो ऑर्डर पे तो जीरो हो गया, ठीक है। इधर आया तो मेरा ये पॉइंट इस तरह बन गया, इधर आया तो मेरा पॉइंट। अब मेरी इस ड्राइंग की कुछ समझ आ रही है जो साथ साथ में, कि अगर आप केम वैल्यू को स्टडी करें तो पॉजिटिव से जहां मैं उसे नेगेटिव में लेकर आया हूं, आप देखें कि मेरी जो ग्राफ लाइन है वो किस तरह बदलती जा रही है और किस तरह नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है बाय गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव ऑफ द केएम वैल्यू। यू अंडरस्टैंड? बेटा इस चीज की पता चल रही है? ये मेरी ड्राइंग का अंत जो मैंने मारा इसको पता चला? नो 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 नो, ओके। यहाँ पे देखो बेटा,
सिर्फ Km को देखो, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, यहां से अगर मैं लाइन गुजारूंगा इस तरह गुजरेगी, यहां से 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 गुजारूंगा। इसकी समझ आ रही? इस चीज की समझ आई, इस लाइंस की गुजारने की समझ आई हमें। आपकी लाइन ने इंटरसेक्ट करना है दूसरे एक्सेस को, वाई एक्सेस को एक्स एक्सेस ने इंटरसेक्ट करना। यहां तक समझ आई काजिम? अब देखो, ये जो जोन है वी मैक्स का, ये पॉजिटिव जोन है वी मैक्स के लिए, ये केएम के लिए नेगेटिव जोन है, ये केएम के लिए पॉजिटिव है। पहले मैंने जोन्स बताए थे ना पहले ड्राइंग ग्राफ के अंदर। तो अगर आपने केएम को उठा के पॉजिटिव से नेगेटिव साइड पे लाए हो, तो आप देखो आपने रेट ऑफ रिएक्शन को या वी मैक्स को उठा के पॉजिटिव के ऊपर ले गए। सिंपल सी बात है, इस छोटी सी बात ने सिर्फ एक्सप्लेन क्या किया है कि अगर केएम वैल्यू पॉजिटिव में या ज्यादा होगी, पॉजिटिव में जो नंबर होता है वो ज्यादा होता है ना, जो ज्यादा होगा तो रेट कम होगा, रेट डिक्रीज होगा। और अगर केएम वैल्यू नेगेटिव में होगा तो रेट इधर जाके रेट इंक्रीज हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनेशन को बेसिकली रेसिप्रोकल ग्राफ ने शो किया। समझ आ गई यहाँ तक ताजीम सारे? अब समझ आ रही है तुम लोगों को कॉन्सेप्ट की? ठीक हो, अब वापस जाओ, वापस इसी पे आते हैं। मैंने इसीलिए खुद से ड्रॉ किया कि इसके अंदर वैल्यूज को निकाल। दिस प्लॉट इज अ स्ट्रेट लाइन, ये एक्सेप्शनली स्ट्रेट लाइन है। द स्लोप shows km over vmax, half the vmax or half the km in inverse proportion of km is on x-axis or on y-axis। ठीक हो गया? इसमें ये भी, इसको मजीद कॉम्प्लिकेटेड ना करो, ये बेसिकली आई स्टिल डोंट गेट इट। अच्छा अजीम, मैं दोबारा से आपको समझाता हूँ। देखो, ये जो ग्राफ है ये एक्चुअली वी मैक्स का भी इनवर्स शो कर रहा है। ठीक है, उसका इनवर्स है 1/5 को शो कर रहा है। ठीक है, 1/5 को ये शो कर रहा है, और ये जो ग्राफ है ये 1/km को शो कर रहा है। ठीक है, इससे पहली इक्वेशन के अंदर अगर आप आते हो, सॉरी, जरा नोट करो। देखो यहाँ पे हमने कहा कि वी मैक्स इज इक्वल टू km। ठीक है, ये पहला स्टेप क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्यों हमने वी मैक्स ओवर km क्लियर हो गया? ठीक हो गया, क्योंकि ये इनवर्स, ये जितना ज्यादा होगा, जितना km वैल्यू ज्यादा होगी एफिनिटी कम होगी, जितना ये कम होगा एफिनिटी ज्यादा होगी। एफिनिटी का मतलब क्या है? रेट। ठीक है, सो ये रेट के ऑपोजिट है। अब नेक्स्ट इक्वेशन ड्रॉ करते हैं। अब वो कहता है वी मैक्स को अगर हम ऑपोजिट प्रोपोर्शन में करें, ठीक है, तो 1/v max is equal to v max नेगेटिव। ठीक है, ये इतनी मैथ्स की समझ आ रही? चलो, ऊपर से वो कहता है 1/km, जो कि यहां से निकाला था, अगर हम इसको ऑपोजिट करते हैं और हम km करते हैं तो ये +1 हो जाएगा। ये ऑलरेडी नेगेटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव हो जाती है। समझ आ रही है? ठीक हो गया। अब नेक्स्ट
और इसमें अब दोबारा चलते हैं। अब हमारे पास जो ग्राफ बना हुआ है वो बना हुआ है V max नेगेटिव का in proportionation with Km पॉजिटिव। ठीक हो गया? वैल्यूज ये है ना हमारी। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि जितना Km आपका बड़ा, उतना ही आपका रिजल्टेंट B मैक्स नेगेटिव बढ़ गया, क्योंकि अब ये अदर वे अराउंड हो गया। यहां तक समझ आ रही है बात की कॉन्सेप्ट की? ओके, अब ग्राफ पे चलते हैं। अब देखो, ये ग्राफ आपका जो एक्स एक्सिस है दैट इज शोइंग द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ Km and negative value of Km and inversely proportionation of Vmax। ठीक है, अब जहां जहां जिस तरह इसको बढ़ाओगे ये उसके ऑपोजिट, यानी ये कम या ज्यादा इसके ऊपर Vmax को शो कर रहा है। यू अंडरस्टैंड द होल थिंग? वेरी गुड, चलो शुगर। अच्छा जी, अब लाइन में बर्ग प्लॉट की वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, वाई एक्सिस वाज 4 Km। ठीक है, द प्लॉट इज अ स्ट्रेट लाइन, Km उसके ऊपर है, V max हाफ 1 ओवर V max है। देखो 1 ओवर V max और 1 ओवर Km जो कि नेगेटिव वैल्यू। ये मैंने दोनों एक ही ग्राफ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब चलते हैं जो लास्ट कॉन्सेप्ट रह गया, ये लाइन में बर्ग प्लॉट की। अच्छा हाँ बेटा, इसके अंदर आप लोगों की ये इतना सर खपाया लोगों की वजह क्या थी? आपको क्यों खपाया गया? आप लोगों से आपको V max Km इस तरह की वैल्यूज दी जाएंगी, और या हो सकता है कि आपको ये ग्राफ दे दिया जाए और उसके बाद आपको कहा जाए कि बेटा आप इसके अंदर बताएं कि फर्क क्या पड़ता है। अगर ये V max इतना हो गया, ये 5 हो गया या ये 10 हो गया, तो Km को क्या होगा, ये Km को कैसा होगा? आप लोगों को उसको रेसिप्रोकेट करके जवाब देना। ठीक है, अब मजे की एक और बात, शायद MBBS वालों को ये सवाल ना आए। ठीक है, इनहिबिटर्स वो चीजें हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक करती हैं। So what are the inhibitors and what type of working they do? That is what we need to study. And that will be the end of enzymology, hopefully. ठीक है, हेरा मैं एक वैल्यू के साथ जरूर एग्जांपल दूंगा, मगर लेट मी गेट डन विद दी इनहिबिटर्स, फिर उसके बाद मैं इंशाल्लाह आई विल कम बैक विद दिस एग्जांपल। ऑलराइट, वैसे तो आपके चैप्टर के एंड पे, आपके चैप्टर के एंड के अंदर किताब ने खुद से एग्जांपल्स के ऊपर ये प्लेस किया हुआ। ठीक है, अगर आप वो कर लो बेहतर हो जाएगा, फिर देन यू कम बैक टू मी, राइट? अच्छा जी, आगे चलते हैं। इनहिबिटर्स के ऊपर हम लोगों को जो कॉन्सेप्ट है, इनहिबिटर्स आर द केमिकल्स दैट रिड्यूस द रेट ऑफ द रिएक्शन। अब रेट ऑफ द रिएक्शन बेटा दोबारा से रेट डिपेंडेंट किस चीज पे है? आपके Km के ऊपर डिपेंडेंट है और आपके कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे डिपेंडेंट है, और किस पे डिपेंडेंट है? कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम पे। ठीक है, इन चीजों पे आपका रेट डिपेंडेंट है। ठीक हो गया? They are usually specific and they are work at a low concentration. ठीक है, and they block the enzyme but do not usually destroy it. Many drugs and poisons are inhibitors of the enzyme in the nervous system. ठीक है, जितने भी हमारी
ड्रग्स हैं जो कि वो बेसिकली हम जितने भी ड्रग्स फार्माकोलॉजी में हम एज ए डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर एंजाइम्स को जाके रिवर्सिबली बाइंड, ठीक है। रिवर्सिबल बाइंड करने का मतलब क्या होता है कि इनका कोई हाफ लाइफ होती है। जैसे कि अगर आपके सर में दर्द हो रही है और आपने पैनाडोल खाई है, तो पैनाडोल आपको 4 से 6 घंटे के लिए कवर दे देगी, ठीक है। 4 से 6 घंटे के बाद या तो आपने डोज रिपीट करनी है, या आपने क्या करना है कि आपकी दर्द खत्म हो जाए। जो पॉइजन्स हैं, पॉइजन्स क्या होते हैं, ये इरिवर्सिबल बाइंडर्स होते हैं आपके एंजाइम्स के। एक दफ़ा आपने साइनेट खा ली या ऑर्गेनोफॉस्फोरस खा लिया, जिस तरह के सबसे ज़्यादा जो सुसाइडल केसेस आती हैं हमारे पाकिस्तान में डॉक्टर्स को फेस करने, वो ख़वातीन के होते हैं। ख़वातीन के अंदर भी ऑलमोस्ट पिंडों की ख़वातीन होती हैं, और उनमें भी सबसे ज़्यादा उन्होंने क्या की होती हैं, चूहे मारने वाली दवाई खाई होती है। तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस होता है। ऑर्गेनोफॉस्फोरस एक ऐसा पॉइजन है जो कि आपके सारे काइनेजेस के साथ बाइंड कर जाता है और इरिवर्सिबली बाइंड करता है। काइनेजेस की एक्टिविटी 4 से 6 घंटे चलती है आपकी बॉडी के अंदर। तो होता क्या है कि 4 से 6 घंटे में वो जो खातून होती है वो सबको अपने लव नोट्स दे के मर जाती है, क्योंकि उसको सेव नहीं किया जा सकता। इरिवर्सिबल बाइंडर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, उसका हार्ट ब्लॉक होता है। आगे चलते हैं। अच्छा जी, irreversible inhibitors combine with the function of the group of sorry sorry. Irreversible inhibitors combine with the functional group of the amino acid in the active site irreversibly, ठीक हो गया। एग्जाम्पल नर्व गैसेस जो कि आपकी वॉर गैसेस होती हैं, पेस्टिसाइड जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस चूहे मारने वाली दवाई, containing organophosphorus combined with seen residues of the enzyme of catecholamine and the estrus, ठीक हो गया। The effects of enzyme inhibition. Oh, sorry. Reversible. These can be washed out and solution and dialysis and the other categories. ठीक हो गया। ये वो हैं जो कि जिनको हम रिवर्सिबल बाइंड करके उतार भी सकते हैं, और इसमें वो वॉश आउट करने वाला तकरीबन ये है कि अगर किसी ने बहुत ज़्यादा झूठी मोटी सुसाइड की अटेम्प्ट की तो आप उसका मैदा वॉश करके निकाल सकते हैं, ठीक है। एंजाइम इनहिबिशन कॉम्पिटिटिव, these compete with the substrate molecule at the for the active site. The inhibitor's action proportional to concentration resembles the substrate structure closely. अब पहला जो आपने इनहिबिटर में जो चीज अब आपने याद रखनी है एंजाइम है, सबसे पहला जो वर्ड आ गया कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर पहला वर्ड ये आ गया, ठीक है। अब इसको अपने पास साइड में लिख के रखना, अभी मैं आप लोगों को इसका नेक्स्ट बताता हूँ, ठीक है। दूसरा आपके पास जो वर्ड आ गया वो नॉन कॉम्पिटिटिव का आ गया, ठीक है। There are influence to the concentration, it remains binding the insulin in not at the active site, ठीक है। इसकी एग्जांपल ले लें, cyanate combines with the iron enzyme of the cytochrome deoxidase heavy metals of mercury, Ag, मुझे नहीं पता, सल्फर हाइड्रोजन, ठीक है, और ETDA, ठीक हो गया। दूसरा जो वर्ड आपने जेन में रखना नॉन कॉम्पिटिटिव, ठीक है। एलोस्टेरिक इनहिबिशन, मैंने आप लोगों को बताया था कि एक एंजाइम की दो साइड्स होती हैं। एक साइड आपकी हो गई एक्टिव साइड, दूसरी साइड आपकी होगी एलोस्टेरिक साइड। तो यहाँ पे वो एक्सप्लेन कर रहा है व्हाट इज दी एलोस्टेरिक साइड, दी अदर साइड। एलोस्टेरिक साइड किस तरह काम करता है, एलोस्टेरिक साइड के ऊपर जब आपका आके एक्टिव साइड के ऊपर एंजाइम बाइंड करता है, तो ये दिस इज दी एक्टिव साइड, ठीक है। और जो आपका एलोस्टेरिक साइड है,
ये आपकी एलोस्टेरिक साइट होगी, ठीक है, और स्विच ऑफ करता है ये आपको एलोस्टेरिक साइट के ऊपर। तो अब आप देखते हैं यहाँ पे जो एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स होंगे वो एक्टिव साइट को हमेशा एंगेजेबल रखेंगे, और जब वो एंगेजेबल होगा तो इसका मतलब ये है कि ये एक्टिव साइट की मॉर्फोलॉजी को चेंज कर देंगे। अब यहीं पे कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव वो हैं जो compete करते हैं एक्टिव साइट के लिए, जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं वो हैं जो कि बाइंड करते हैं एलोस्टेरिक पे। ठीक हो गया? This is the example of non-competitive. This is the example of competitive. ठीक हो गया? Going ahead of it. अच्छा जी, अब नेगेटिव फीडबैक किस चीज की एग्जांपल है? This is not a competitive inhibition. When inhibitor combines and diminish the enzyme conformation changes are allowed. जो नेगेटिव फीडबैक होता है, जिस तरह के हम बहुत सी एंजाइम्स के अंदर नेगेटिव फीडबैक देख रहे होते हैं, तो नेगेटिव फीडबैक इज एन एग्जांपल ऑफ अ एलोस्टेरिक इनहिबिशन, राइट? नेक्स्ट टू दैट, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमने समझना है और वी आर गोइंग टू वर्क विद इट। मेरा पीसी बंद हो गया इसलिए चार्ट के साथ। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेसिस इसकी एग्जांपल है, इसको आप लोग खुद पढ़ लेना जी, इसके बारे में मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है? ये मुख्तलिफ एंजाइम्स के ऊपर बात की गई है, इसको रहने दें। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फॉस्फो। अच्छा जी, दिस इज वेयर वी आर गोइंग टू टच अ बिट, ठीक है? यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझे बेटो कि कॉम्पिटिटिव ने जब एंजाइम की एफिनिटी को चेंज करना है तो वो वीमैक्स को चेंज करेगा, ठीक है? क्योंकि वो एक ही चीज के ऊपर दो बंदे कॉम्पीट कर रहे हैं। आप देखें, द टाइप ऑफ इनहिबिशन दैट अकर्स when the inhibitor binds reversibly at the same site that substrate has to bind, ठीक है? The effect on the Vmax, अब इसका effect लाइन भी मैं प्लॉट पे आप देखोगे साथ साथ। The effect of competitive inhibition is reversed by the increasing the substrate concentration। अब दो बंदे एक सीट के ऊपर लड़ रहे हैं तो सीधी सी बात है वो बंदा जीतेगा जिसकी पावर ज्यादा है या जिसके साथ बंदे ज्यादा है, ठीक है ना? तो फॉर एग्जांपल मैं और आप एक सीट पे बैठने लगे, आप 10 बंदे हो जाओगे तो दो बंदे मुझे उठा के साइड पे बिठा देंगे और आप बैठ जाओगे। सेम सिमिलरली अगर मैं 10 बंदे जाऊंगा तो मैं आप लोगों को उठा के साइड पे करके मैं बैठ जाऊंगा। सो गेटिंग दैट कॉन्सेप्ट कि जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर अपना रेट आगे लेके जाएगा। फॉर एग्जांपल एक ऐसी दवाई आप देते हैं जो फीवर को नीचे लेकर आ रहा है, that is in concentration, और जिसे आप ये कह सकते हैं that is in competitive with the fever। तो जैसे जैसे आप पैनाडोल की डोज बढ़ाते जाएंगे फीवर नीचे आता जाएगा, और जैसे जैसे फीवर बढ़ता जाएगा या तो either you need to increase the dose of Panadol or you will lose against the fever, right? So this is the clinical example to understand. On the other hand, a competitive inhibitor increases
the Km given for the substrate. अब एफिनिटी वो चीज है जो कि हमने कहा था, Km वो एफिनिटी है। एफिनिटी वो चीज है जहां से एंजाइम की लाइकिंग टू द सबस्ट्रेट है, और अगर एंजाइम की लाइकिंग टू द सबस्ट्रेट ज्यादा नहीं है तो एंजाइम की लाइकिंग फॉर द सबस्ट्रेट ज्यादा नहीं है, इट मींस कि इट वाज बीन ब्लॉक्ड ऑल द वे बाय द इनहिबिटर, तो उसकी एफिनिटी कम हो जाएगी ना। ऑब्वियसली एफिनिटी जो प्यार एंजाइम ने सबस्ट्रेट के साथ करना है वो उसकी जगह करने के लिए एक्टिव साइट, अगर आप एक्टिव साइट ब्लॉक कर देंगे तो एफिनिटी डिक्रीज कर जाएगी। और क्योंकि हमने कहा था के एम वैल्यू इज रिवर्सिबल और इनवर्स ऑफ द एफिनिटी, तो के एम वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। ठीक हो गया? इफेक्ट लाइन व्यूअर वर्क प्लॉट के ऊपर इन सब के दिए गए हैं। ठीक हो गया? इसको बेटा आप लोगों ने you will now search or scratch your time out and you will go through these example one by one, try to apprehend। ये इतनी आसान नहीं है, मैं सारे बच्चों को मिलके कह रहा हूँ ये आसान नहीं है टू अंडरस्टैंड। आपको जरूर इसमें प्रॉब्लम आएगी अगर आप इसको खुद से करना शुरू करेंगे और इनहिबिटर्स डाल के अंडरस्टैंड करेंगे। तो प्लीज स्क्रैच योर टाइम ओवर द वीकेंड और वट एवर द टाइम यू हैव एंड देन कम बैक टू। ठीक है? अब एक नॉन कॉम्पिटिटिव आ गया जो कि एलोस्टेरिक साइड पे है। जब एक एंजाइम एक इनहिबिटर ने जाना ही अलग जगह पे बैठना है और एक ने जाना ही अलग जगह पे, जिस तरह के एक स्टॉप के ऊपर 100 बंदे इकट्ठे कर दे आपने एक बस पे चढ़ने के लिए, और एक वहां पे एक स्टॉप एक बंदा या एक आप आए हुए और आपकी अपनी पर्सनल गाड़ी आ गई हुई है, आपने अपनी गाड़ी में बैठना है, आपने उस बस में नहीं बैठना। यू आर रिगार्डलेस ऑफ दैट कि 100 बंदे स्टॉप पे खड़े हुए या 10 बंदे स्टॉप पे खड़े हुए, आपने अपनी गाड़ी में आके बैठ के चले जाना। ठीक है? सो सिमिलरली नॉन कॉम्पिटिटिव जिसने एलोस्टेरिक साइड में बाइंड करना है, नॉन कॉम्पिटिटिव के अंदर भी यही होता है कि जो इनहिबिटर है उसका एंजाइम और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं। ठीक है? द मोमेंट यू पुट नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इन द सॉल्यूशन, it will go and bind to the allosteric side regardless of the concentration of the uh, substrate। सो होगा क्या कि इसके अंदर आपकी केम वैल्यू तो डेफिनेटली चेंज हो और Vmax डेफिनेटली डिक्रीज हो। ठीक है? तो non-competitive inhibitors do not interfere with the binding substrate enzyme and thus shows same Km value। क्यों Km वैल्यू से सेम होगी यहाँ पे बेटा? आप लोगों ने बात को कैच नहीं किया। यहाँ पे Km वैल्यू क्यों सेम होगी? क्योंकि बेटा ये एक्टिव साइड को इंगेज ही नहीं करेगा, एफिनिटी साइड को ये हाथ ही नहीं लगाएगा। तो इसका मतलब है Km को उसने कुछ भी नहीं किया। वो एंजाइम बाइंड करे ना करे, वो एक दफा उसके एलोस्टेरिक साइड के ऊपर आके इनहिबिटर लग गया, वो एंजाइम फंक्शनैलिटी नहीं कर सकता। तो Km value remains constant whereas Vmax will be down। So ये देखें कि यहाँ पे उसने Km वैल्यू यहीं पे रखी हुई है और Vmax को ऑल्टर गया। अगेन ये ग्राफ्स को पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया? मेरा टाइम भी कंप्लीट हो गया और बेटा लेक्चर भी कंप्लीट हो गया। नाउ यू गो टू स्टडी एंड स्क्रैच दिस आउट एंड लेट मी नो। थैंक यू सो वेरी मच। एनीथिंग दैट सो फॉर लेफ्ट हियर? नहीं, नहीं। आई एम साइनिंग ऑफ।